So in the last class I started unconstant optimization problem, है ना? तो first method was steepest descent method. So I explained you something about the method, how to approach, है ना? Geometrically I explained. We basically take the concept of gradient because you know a function decreases in the direction of minus del f, है ना? This was a concept you have studied in your advanced calculus. So using this concept, we have a method, gradient method, or it is also called the steepest descent method. Okay. So let us take the algorithm. What is the algorithm of this method? Step 1. Step 1, you will have to choose some starting value. Suppose you have some x naught, है ना? I am writing x naught as a 0 on the top here, है ना? As a not as a base, belongs to Rn, and as a suffix, it is called suffix. And this initial point will giving to you because you have to start with some initial value. Starting with initial value, we will be moving towards the optimum value. So this initial value will be given to you, or you have to consider by yourself some value. Okay, what is the possible value may be there? And in problems, it will be given to you some x naught. X naught का मतलब 0 iteration. Your first value is given because it is an iterative method. I will be calculating by different iteration, like you have done in your numerical methods. So x naught will be given to you and some tolerance. Tolerance epsilon greater than 0. Tolerance means what? कि up to what value you will calculate it. जो आपके पास एरर आ रही है, तो वो जो एरर हो वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज योर टॉलरेंस, कि इतनी एरर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, है ना? दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस. कैसे निकलेगी आपकी ये? फाइनल वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. जैसे आपने x नॉट वैल्यू पुट करी, यू विल फाइंड योर x1 फर्स्ट वैल्यू. तो x1 माइनस x नॉट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन विल बी गिवन टू यू कि जो आपके पास न्यू वैल्यू आ रही है, इसका डिफरेंस ओल्ड वैल्यू से एक लिमिटेड दे रखा हुआ है ना, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा हो. So that is called tolerance. It will also given you in the problem. So you will start with set k is equal to 0. Step 2, compute gradient f of xk. Gradient f x k हम निकालेंगे ना, and dk is equal to minus del of f x k. ये वैल्यू I will calculate gradient. You know how to find gradient, है ना? del f over del x I plus del f over del y j जो होता है gradient. I will take a problem, then there I will explain how to find it. And this dk, d means direction actually. So dk will be the direction of gradient with minus sign. Means it will be the direction where your function is decreasing most rapidly. तो डायरेक्शन है. तो यहाँ पर k means k is iteration. तो आपकी फर्स्ट आइटरेशन में you will take x1. तो you जैसे x0 से स्टार्ट किया आपने, तो k is equal to 0 पे you will calculate what is your gradient. And then ये d है, d, हाँ, d is direction, dk. And at k is equal to 0 पे I will take the direction of minus del f x naught. What is the direction of this? ये एक आपकी डायरेक्शन आ जाएगी. Then step 3 में I will evaluate x of k plus 1 means my next value. जैसे k 0 है तो x1, k1 हुआ तो x2.
its value will be xk plus alpha k bar dk, where this alpha k bar, it is positive and is chosen such that h of alpha k bar is equal to minimum of h alpha k is greater than equal to 0, and where h alpha k is f of xk plus alpha k dk ना, ये क्या चीज है? तो यू विल हैव टू फाइंड योर नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम किस तरफ फाइंड करेंगे? तो एक्स के जो प्रीवियस पॉइंट था और प्लस अल्फा के बाद डी के। तो डी के तो आपकी डायरेक्शन है वही ग्रेडियंट की, इट इज द डायरेक्शन, है ना। और डी के क्या है? डी के इज दिस माइनस डेल एफ, डी के इज दिस। तो व्हेन यू विल फाइंड योर ग्रेडियंट एंड बिकॉज योर फंक्शन इज नॉन लीनियर, तो ये कुछ फंक्शन ऑफ एक्स के ही आएगा, जाहिर है कि भाई नॉन लीनियर है अगर, तो जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब का टर्म होगा, तो इट विल बी कमिंग सम फंक्शन ऑफ एक्स के, उसके आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू देगा। तो आई विल पुट इट इन द एक्स के प्लस अल्फा के बार, so it will give you a new value in the direction of decreasing because I am taking minus del f x k. यहाँ पर अल्फा के how I will find alpha k will be calculated by this formula कि I will take the minimum value of h alpha k. Actually when you are moving in the decreasing direction, so dk is okay, but this alpha k is also has a role here. So I will find the minimum value of this alpha k. What is the minimum value of this? Using this formula, h alpha k is f x k plus, इसके अंदर हम अल्फा के रखेंगे और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, है ना। हाउ आई विल फाइंड इट, आई विल एक्सप्लेन इन द प्रॉब्लम। ये दिस स्टेप आई विल बी रिपीटिंग ऑल द टाइम। कहाँ तक रिपीट करना है? जब तक आपके पास जो टॉलरेंस है वो टॉलरेंस तक हम ना पहुंच जाए। तो नेक्स्ट स्टेप मीन्स स्टॉप आइट्रेशन, stop iterations when we get norm of this del of xk less than epsilon। ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव, इसको हम निकालेंगे इसका नॉर्म, इफ इट इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपको गिवन होगा, जहां पर ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है दैट विल बी योर स्टॉपिंग पॉइंट। सो इन दैट केस xk becomes the point of the solution set, and if therefore if f is convex function, then it becomes an optimal solution to the given problem। ओके, तो आई विल बी फाइंडिंग इन दिस वे, और फंक्शन कॉन्वेक्स है, प्रॉब्लम आपके कॉन्वेक्स फंक्शन ही लेंगे हम, तो इट विल गिव यू द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉब्लम। Because as I told you, this rate of convergence is very slow here, because the rate of convergence is very slow, ये इसका एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, ग्रेडियंट मेथड का। So rate of convergence is very slow, it takes many iterations
to get the answer, to get an optimal solution. Rate of convergence क्या था कि with the rate by which it will be moving towards the solution, है ना, converging हो रहा होगा. So let us take one problem. I will take one problem. There I will explain the whole method again. So I am taking a problem. Minimize f of x1 x2 is equal to x1 minus x2 plus 2x1 square plus 2x1 x2 plus x2 square by the steepest descent method. Starting from one point is given, x1 is 0. देखो यहाँ पर पॉइंट इन्होंने ऐसे कॉलम में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब वही है जैसे 0 0, क्योंकि अब आपके पास पॉइंट्स क्या होंगे, जाहिर है ये R2 का है मेंबर, यू विल बी हैविंग 2 पॉइंट्स स्टार्टिंग विद 0 0, तो कॉलम में लिख रहे हैं टेक, इसका मतलब क्या, इट मींस व्हाट, x1 0 x2 0 है ना, यहाँ पे ये x1 इन्होंने लेकिन ऊपर सफिक्स में लिखा हुआ है, एंड टेक f साइला इज 0.1. ये आपकी टॉलरेंस है, मींस जहाँ पे आपके पास डेल एफ एक्स के लेस देन 0.1 आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, है ना, ये बताया मैंने आपको कि नॉर्म ऑफ डेल एफ एक्स शुड बी लेस देन एफ साइला. So I will find every time I will find a new point. At the new point I will find what is the norm of this gradient. Norm क्यों ले रहे हैं हम, because you have studied a metric space, you know it is function from Rn, so I will take norm. So norm is less than epsilon, so I will stop there. So these my data will be given to you. So first thing is what? If I want to start with my iteration, I need what? I need dk. Dk means I need del f x k, है ना? So I will calculate firstly what is del f x k. K is 0 here. So del f निकाल ले अगर हम gradient, देखो तो gradient आपका क्या होगा? You will write gradient. Gradient का फॉर्मूला क्या होता है? del f over del x I plus del f over del y j. ये तो होता है. तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ क्योंकि हमारी कैलकुलेशन चलेगी, तो ये एक नोटेशन यूज कर रहे हैं इस तरीके से, ये भी वही चीज है. इफ यू आर राइटिंग समथिंग i प्लस j, उसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. फर्स्ट कॉलम विल बी योर i कोफिशिएंट, सेकंड एलिमेंट विल बी k कोफिशिएंट. तो डेल f ओवर डेल f की वैल्यू क्या थी? fxi प्लस fij, याद है? यस सर. तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट fx इज द फर्स्ट रो, fy इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ. तो डेल f विल बी व्हाट, बताइए? 1 प्लस 4x1 and plus 2x2. It is your coefficient of I. Then second will be del f over del y, fy. Fy is how much? Minus 1 plus 2x1 plus 2x2. लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में लिख दिया हमने, ये यही चीज है ये. इसको आप अगर ऐसे लिखेंगे, नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट आइट्रेशन, आइट्रेशन 1. So first thing I need d1, है ना, आइट्रेशन 1 का मतलब k is 1, so k1 is d1. So d1 will be what? Minus del f x1 ना. यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट ये x1 गिवन था, इट इज योर फर्स्ट वैल्यू इज गिवन टू यू हियर, x1 is given. So d1 will be what? Minus del f x1 means at the point I will find what is del f. So how much it is coming? x1 है ना, x1 कितना है? 0 0. So how much it will be? 0 0 पुट कर दो, 1 minus 1 with minus sign. Is it clear? Yes sir. चलो, तो you got your d1. Now I will find step 2, xk plus 1. I want now my what is my second point. So I will moving in the direction of minus del f xk.
So x2 will be what? x1 plus alpha 1 bar dk. So now second step is x2. x2 will be x1 plus alpha 1 bar d1. So x1 is how much? 0 0 plus alpha 1 bar I will calculate, and d1 bar I have just calculated. d1 bar is how much? माइनस टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस को अंदर ले जाओ आप अगर, तो ये कितना हो गया था? -1 1. सो यू हैव -1 1. ओके, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखो, 0 प्लस अल्फा 1 बार, तो माइनस अल्फा 1 बार एंड 0 प्लस अल्फा 1 बार इज अल्फा 1. सो यू गॉट दिस. नाउ व्हाट इज अल्फा 1 बार, ये हमें निकालना है. जब अल्फा बार पता चल जाएगा, ओनली देन आई कैन टेक व्हाट इज x2. तो टू फाइंड अल्फा 1 बार व्हाट आई विल डू, we minimize. Am I audible? Yes, sir. हाँ ठीक है, बीच बीच में लिख के आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल. ओके, सो टू फाइंड ये अल्फा बार हमने कैसे निकालेंगे, देखो आई जस्ट एक्सप्लेन यू हियर. टू फाइंड अल्फा 1 बार आई विल फाइंड द मिनिमम ऑफ एच अल्फा के. एच अल्फा के क्या है? एफ एक्स के प्लस अल्फा के डी के. मीन्स इसका फंक्शन हम लेंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे. सो आई विल फाइंड, है ना, we minimize this h of alpha 1 bar. Alpha 1 bar is what? f of x1 plus alpha 1 d1, है ना. इसका फंक्शन, इसे हमने एज ए फंक्शन ले लिया. देखो आपका d1 तो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन द होल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट, दैट इज द मेन थिंग. तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमने मिनिमाइजिंग डायरेक्शन से ये निकाल लिया. अब आई विल फाइंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस. जो मिनिमम वैल्यू आएगी, that will I will take the value for alpha 1. So I will find the minimum value of this function f of x1 plus alpha 1 d bar. तो ये कितना, it is how much it is coming, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है. it is how much? माइनस अल्फा 1 बार माइनस अल्फा 1. ये तो निकल के आया था आपके पास अभी, है ना, ये अल्फा 1 बार लिखा हुआ था. तो इट्स वैल्यू इज हाउ मच? माइनस अल्फा 1. ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये पूरी जो वैल्यू आई निकल के. यस सर. अब इस ये एक फंक्शन बनेगा आपका. मींस ये जो fx1 x2 था, इसकी जगह पर आई विल पुट अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 एंड अल्फा 1, और उस फंक्शन का मिनिमम निकालना है हमें. तो पुटिंग माइनस अल्फा 1 एंड अल्फा 1 इन प्लेस ऑफ x1 एंड x2, है ना, f ऑफ दिस है. तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, पुट, देखो यहाँ हमने रखा माइनस अल्फा 1 x1 की जगह पर अल्फा 1 बार. तो यू विल बी गेटिंग माइनस अल्फा 1 बार एंड देन प्लस 2 अल्फा 1 बार. ओके, इसमें रखो. यस सर. और टर्म्स को अरेंज कर लो. तो फाइनली इट विल बी कमिंग अल्फा 1 बार स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1. ये आएगा, क्योंकि पूरे अल्फा 1 के टर्म्स है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. देखो ये अल्फा 1 बार है माइनस का, और ये होगा माइनस का, ये माइनस ये ऐड हो जाएगा, लेकिन ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म्स. देखिए, है ना, ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा 1 बार प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और एक टर्म बचेगा अल्फा 1 बार. So I want to find the minimum value of this. Now it is a function of alpha 1 bar only. So it is a function of one variable. One variable के लिए हमें function के value क्या निकालते हैं? You have to find dh over d alpha 1 bar is equal to 0, है ना. It is a function of one variable now. So I will find, to minimize, I will find dh alpha 1 bar upon d of alpha 1 bar is equal to 0, है ना. I want stationary point. तो कितना आ गया? 2 alpha 1 bar minus 2 is equal to 0. That means you got alpha 1 bar is equal to 1. तो यहाँ पर एक ही पॉइंट आया आपका. तो it is the minimum value. So I will put this alpha 1 bar back to here. It will be your x2. So x2 will be what? So this implies that your x2 is minus 1. ये आपका सेकंड पॉइंट निकल के आ गया. नाउ आई विल रिपीट दिस स्टेप्स अगेन आई विल फाइंड ग्रेडियंट f, है ना, एट x2 दैट इज d2. अच्छा, यहाँ पर अगर आप नॉर्म की वैल्यू निकालें, यहाँ आई विल चेक वेदर आई कैन स्टॉप हियर और नॉट. सो आई विल कैलकुलेट व्हाट अबाउट नॉर्म एट दिस न्यू पॉइंट.
So you will have to find gradient of fx2 at this new point. तो वो कितना हो जाएगा ग्रेडियंट? ग्रेडियंट क्या था आपके पास? ये था 1 + 4x1 + तो इसकी जगह पुट हम क्या करेंगे वैल्यू? ये न्यू वैल्यू -1,1 इट विल बी 1 - 4 + 2 एंड -1 - 2 + 2 है ना। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ग्रेडियंट इस जगह पे। सो यू गॉट -1 एंड -3 + 2 1. What about its norm? अब I will find its तो norm. -1, so -1 आएगा। Okay. So I will find its norm. Norm क्या होता है भाई? अंडर रूट है ना। नॉर्म की वैल्यू पहले तो नॉर्म निकालो इसका। तो नॉर्म क्या होता है? अंडर रूट x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर। तो अंडर रूट -1 स्क्वायर, ये तो है नॉर्म। सो इट इज कमिंग अंडर रूट 2 विच इज 1.4142, बट इट इज नॉट 0.1 से लेस देन नहीं है ना। हमें दे रखा था कि फाई शुड बी 0.1, 1 से बड़ा आ रहा है ये। तो इसका मतलब आई विल नॉट स्टॉप हियर, सो आई विल हैव टू फाइंड अनदर वैल्यू। इज इट क्लियर? है ना। अब अगर जहां पर ये लेस आ जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे, बट इट इज नॉट लेस देन, सो मीन्स सो हाँ we will move to the next iteration. ओके चलो, तो अब क्या करना है? अब हमें फिर वही स्टेप रिपीट करने हैं, सेम थिंग है ना। लेट अस फाइंड नाउ आइट्रेशन। हाँ, तो आइट्रेशन 2 की बात कर, अब ये आइट्रेशन 1 था, लेट अस टेक आइट्रेशन 2। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं आइट्रेशन 2। iteration 2. So I will calculate d2. d2 will be minus del f x2. इस न्यू पॉइंट पे ग्रेडियंट है ना। तो ये हमने अभी निकाला था, ग्रेडियंट कितना आया था? -1, -1, ये निकाला था अभी। -1, -1, इसका माइनस ले लेंगे, so it will become +1, 1. Now I will find new point x3. It will be x2 plus alpha 2 bar d2. Okay, यस सर। है ना। दिस x1 था, अब x3 है, तो x2 इसकी वैल्यू आप यू कैन फाइंड। सो x2 इज हाउ मच? न्यू पॉइंट वाज -1, -1। x2 कितना था? x2 हमारा पॉइंट था -1, 1, ये। तो -1, 1 एंड प्लस alpha 2 bar and gradient is coming 1, 1. So it is coming after arranging the terms. So -1 plus alpha 2 bar and 1 plus alpha 2 bar. Now I will find what is alpha 2 bar. So what I will take? I will take a function of this alpha 2 bar. It will be how much? F of x2 plus alpha 2 bar d2. फंक्शन में हम इसका फंक्शन निकालेंगे। That means f of इसकी वैल्यू क्या आई थी? What is the value of this? This and ये तो है, it is your x1, it is your x2. यस सर। Putting back in the function, ये आपके पास फंक्शन है। यहाँ पर x1 की जगह पुट करूंगा दिस, है ना। So here x1 की जगह you will be putting -1 plus alpha 2 bar and in place of x2 you will be putting 1 plus alpha 2 bar. तो पूरा फंक्शन अल्फा 2 में चेंज हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग इट इज कमिंग 5 of alpha 2 square, alpha 2 bar square minus twice alpha 2 bar -1। एक्चुअली यहाँ बार ये लिख रहे हैं क्योंकि बार का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर अल्फा 2 की वैल्यू मिनिमम वाली लेनी है, जो मिनिमम आएगा, ध्यान रखना है ना। तो मिनिमम के लिए फिर आपको यू हैव टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ दिस। इज इक्वल टू 0। So how much it is coming? 10 lambda 2 minus 2 is equal to 0. So that means 1/5. 10 alpha 2. Yes. Minus 2 is equal to 0. Sorry. So it is coming 10 alpha 2 bar minus twice is equal to. So you are getting. अब यहाँ पर आपके पास बार बार एक ही पॉइंट निकल कर आ रहा है ना। तो यही अल्फा 2 बार हो जा रहा है। अगर पॉइंट एक से ज्यादा निकल कर आएंगे तो आप उनमें से फिर चेक करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मिनिमम दे रहा होगा वो आपका अल्फा 2 बार होगा। यहाँ पर तो एक ही पॉइंट आ रहा है आपका,
और आप जब चेक करेंगे हमेशा देखो यही पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। देखो अगर आप D2H अल्फा 2 बार ओवर D अल्फा 2 बार निकालेंगे तो हाउ मच इट इज कमिंग 10 एंड इट इज पॉजिटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव मींस इट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके 11:30 बजे आपको अगर ये सोचो काम बुलाया ठीक। हाँ मुझे तो काम है ठीक है। क्यों क्यों ओके so we got this now putting the value alpha 2 bar back into this so it will give you your new point so hence x3 is how much -1 plus 0.2 that means -0.8. 0.8 and 1 plus 0.2 means 1.2 is 1.2. your new point. Now I will check what about gradient. अगर gradient आपका less हो रहा है तो we need not to proceed further. Otherwise I will have to proceed. So I will find now again del f x3. इसका norm निकालेंगे. तो इसकी value पहले I will find value. तो 1 plus 4 of minus 0.8 plus twice of 1.2 and -1 plus twice of minus 0.8 plus twice of 1 है ना ग्रेडियंट हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी so it is coming 0.2 minus 0. So what about norm? Norm will be how much? इसका under root. So it is 0.04 0.04. तो 0.08 है 0.08. ना। इसके लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आ देता था मैं तो कैलकुलेटर अलाउ कर रखा था इसमें जब आपके ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी यू कैन ब्रिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो इट विल बी कमिंग 0.2828 है ना इसका अंडर रूट निकालेंगे तो विच इज अगेन नॉट लेस देन 0.1 देखो है ना अभी भी नहीं है लेकिन वी आर मूविंग टुवार्ड्स टॉलरेंस Yes sir. बट स्टिल आई नीड वन मोर इटरेशन एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज स्लो सो आई विल मूव आइट्रेशन 3 let us take iteration 3 so same procedure I will repeat so I will write a little bit fast so D3 will be minus del f x3 your direction firstly so it will become minus 0.2 and minus 0.2 है ना gradient del f x3 हमारा पॉइंट क्या था अभी जो निकाला है that was your Yes point sir. तो इसकी हमने ग्रेडियंट की वैल्यू ये निकाली तो थी अभी ये निकल के आई थी तो इसका माइनस कर दो बस यहाँ पे तो यही ग्रेडियंट है आपका so it is minus 0.2 and 0.2 now I will find the x4 so x4 will be x3 plus alpha 3 bar d3 so it will be how much x3 was minus 0.8 and 1.2 plus alpha 3 bar d3 is this minus 0.2 and 0.2 so its value is coming 0.8 with minus sign minus 0.2 alpha 3 bar and 1.2 plus 0.2 alpha 3 bar okay so I will find now what is the minimum value of this alpha 3 bar so I will take h of alpha 3 bar so f of x3 plus alpha 3 d3 so you have f of minus 0.8 minus 0.2 alpha 3 bar and 1.2 plus 0.2 alpha 3 bar इसे हम फिर फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है देखो जब रखोगे इसको सॉल्व करोगे आप तो इट विल बी कमिंग 0.04 अल्फा 3 स्क्वायर माइनस 0.08 अल्फा 3 बार लगा दो सब में बार चल रहा है तो माइनस 1.2 ये वैल्यू निकल कर आएगी है ना यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी so now I will find its minimum value so you will have to find d of h alpha 3 सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए सर आप चलो so you will take this is equal to 0 so it will give you the point alpha 3 bar is equal to 1 ना जब आप 0 पुट करेंगे तो alpha 3 1 आ रहा है सिंगल पॉइंट आ रहा है so I will find now del of f हाँ तो what is your x4 so
So x4 will become minus 0.8 minus 0.2 and 1.2 plus 0.2. So it is coming minus 1 and 1.4. It is your x4. Now I will see what about del f x4. इस न्यू पॉइंट पे ग्रेडियंट हमारा क्या है, तो इस पर आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी वही 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1.4 and it will be minus 1 plus 2 into minus 1 plus 2 into 1.4. So it is coming minus 1, 1.4. Okay. So norm of del f x4, it will become under root, नहीं सॉरी ये आपका -1 नहीं आ रहा है, गलत यार, it is sorry, this is coming, सॉल्व कर लेंगे आप तो देख सकते हैं, minus 0.2 and minus 0. It is coming this. Yes, sir. It is again minus 0.2 whole square plus minus 0.2 whole square. तो यहाँ क्या फिर वैल्यू जो है वही आ रही, देखिए 0.08 जो अभी पीछे आ रही थी, यानी अभी भी कुछ नहीं हुआ ना, पीछे भी तो ये आई थी आपकी, तो सेम वैल्यू में रिपीटेड, इसका मतलब कि दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग अहेड, तो अगेन आई हैव टू फाइंड द नेक्स्ट, सो आइटरेशन 5, आइटरेशन 5। सर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है सर ये? अगर ऑफलाइन हुआ तो फिर इसका कोई नंबर ही नहीं है, मतलब सर मतलब अगर ऑफलाइन हुआ तो फिर वही आएगा आपका, उसमें मैं आइटरेशन कम कर देता हूँ, एक्चुअली मैं जब डेटा देता हूँ ना तो मैं आपके क्वेश्चन में ये देता हूँ कि सॉल्व अप टू आइटरेशन 3, तो उसमें आपको एप्सिलॉन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, बस 3 आइटरेशन दिखा दीजिएगा आप, ठीक है, तो टाइम बच जाएगा। ये प्रॉब्लम तो मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको एप्सिलॉन से कंपेयर करना है, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो दिस इज योर आइटरेशन 4, 3 नहीं 4 आइटरेशन है। यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्लास अगर एग्जाम में आएगा तो यू विल बी डूइंग इट बाय योरसेल्फ, आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, आप फटाफट करते चले जाएंगे। तो D4 is minus del f x4, it will be 0.2 0.2। अब मैं फास्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम भी आपको, x5 निकालेंगे, x4 प्लस अल्फा 4 बार D4, वही सम वैल्यू, x4 is -1 1.4 प्लस अल्फा 4 बार 0.2 एंड 0.2, है ना, ये आपका आ गया था निकल, सो इट इज कमिंग -1 प्लस 0.2 अल्फा 4 बार 1.4 plus 0.2 alpha 4 bar. So now I will calculate h of alpha 4 bar. It will be f of x4 plus alpha 4 bar and d4. Its value is coming 0.2 alpha 1 square minus 0.08 alpha 4 minus 1.2 bar। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना है दानियाल, जल्दी से लो दयान। ले लिया सर, ले लिया। चलिए, तो इसकी वैल्यू आई विल फाइंड नाउ, डी एच अल्फा 4 बार अपॉन डी ऑफ अल्फा 4 बार इज इक्वल टू 0। तो इससे आपके पास अल्फा 4 की वैल्यू निकल आएगी 0.2 बार की, ना एक ही वैल्यू निकल के आएगी। नाउ आई विल फाइंड माई x5, तो x5 विल बी माइनस 0.96 एंड 1.44, है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ पर इस जगह x5 में। So now I will find norm at this point. So its norm is, तो पहले आप gradient निकाल लें, what is gradient at this point? तो gradient is coming 0.04 minus 0.04. This is the gradient. So its value will be under root 0.04 whole square plus minus 0.04 whole square. कितना हो गया भाई? 0.04 स्क्वायर 0, हाँ तो 0016 so it will become 0032। तो इसको जब आप निकालेंगे फाइंडिंग, इसका अंडर रूट निकाल देंगे, डायरेक्ट अंडर रूट फिर निकाल के लिख दे रहे हैं, so it will be coming your, निकाल सकते हैं इसे हम 32/1000, इससे लिख दो आप 10,000, so it is coming 0.0565
57 लेस देन 0.1 आ गया भाई क्या? Yes, sir. It is less than 0.1, so it means, so here we stop, and the optimal point is x5 is equal to minus 0.0 क्या था 0.96 and 1.44 is the required point, optimal point. You can find the value. What about f? तो f स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब वैल्यू उठा के पुट कर दिए उसमें. It is coming minus 1.25. It is the minimum value of the function. Okay. Up to this step you have to solve it. एक प्रॉब्लम असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, आप करेंगे अपने आप. Tomorrow I will explain the next. F of x1 x2 is equal to 3x1 square minus 4x1 x2 plus 2x2 square plus 4x1 plus 6. Start with x1 is equal to 0 0 and calculate up to 4th iteration. यहाँ पे मैंने इटरेशन फिक्स कर दी है आपके लिए. ठीक है, आपको Okay, 4 sir. इटरेशन दिखानी है. यहाँ पे एप्सिलॉन का कंसेप्ट नहीं रखा मैंने. अगर एप्सिलॉन होगा तो ऐसे ही करेंगे, है ना, बाय ग्रेडियंट मेथड. ये एक प्रॉब्लम ट्राई करिएगा अपने नोट्स पे. 3x1 square minus 4x1 x2 plus 2x2 square plus 4x1 plus 6. This is our initial starting point x1